I have shown you the how to create a object and how to call the method of a class. So now I will start with the constructor. The constructor is a special method which is used for initializing the member variable. For initializing the member variable, constructor is used. माने member variable माने कौन क्लास भितर जो वेरिएबल टा हमें डिफाइन करबा ता कहबा मेंबर वेरिएबल से मेंबर वेरिएबल टा को हमें इनिशियलाइजेशन करिया पे यूज करबा कंस्ट्रक्टर इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेंबर variable constructor are normally used to initialize the instance variable तो जेमति कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करबा को हेले आमे यूज करूचे कोन ना क्लास नेम जहाँ रहिबो कंस्ट्रक्टर नेम सेया रहिबो किंतु एठी आमे जरा कंस्ट्रक्टर यूज करबा तो वी हैव टू यूज दैट डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर तो आमे एटा यूज करबा डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर ए मेथड आमे यूज करबा ए मेथड थ्रू रे आमे कोन करबा ना आमे कंस्ट्रक्टर वैल्यू बा इनिशियलाइजेशन करि परिबा while creating an object, a constructor can accept the argument if necessary. When you create a class without a constructor, Python automatically create a default constructor. तो आमे जदि गोटे क्लास रे कंस्ट्रक्टर डिफाइन न करिबा ताले कंपाइलर कोन करिवो ऑटोमेटिक तम पई कंस्ट्रक्टर ऐड कर देबो तो एवरी क्लास मस्ट हैव ए कंस्ट्रक्टर even if it simply relies on the default constructor तो अभी हमें देखिबा कंस्ट्रक्टर केमती काम करूची सर ये प्रीवियस क्लास रा आउट एग्जांपल साठी करदेबे आ गोटे एग्जांपल माने बुझतन सर आउट प्रोग्राम फंक्शन ने की डिक्लेयर करके फंक्शन प्रोग्राम जो क्लास क्रिएट करके हम हां सर देखो ये लास्ट क्लास जोटा कराइतला हिंता आउट से कंस्ट्रक्टर देखो छी this is a simple constructor we are using class constructor then class name is co then constructor we define init so default parameter of any method is self name and age is the what parameter name
तो ये हमरा जो नेम आउ एज ये आम डिफाइन कले वी कैन से इट इज एज अ मेंबर वेरिएबल तापर आम ये कौन कले ना p1 ऑब्जेक्ट ये गोटे ऑब्जेक्ट बनाला क्लास रा ऑब्जेक्ट क्लास रा नेम है कंस्ट्रक्टर अमित एंड 32 अमित है नेम 32 है एज तो ये दुटा वैल्यू नेम आउ एज रे स्टोर है स्टोर है जिते मुझे p1 डॉट नेम लिखी से अमित शो कर p1 डॉट एज लिखले 32 शो कर Amit and 32. It is a constructor. At the time of creating a object of class, constructor is called. बुझेला? प्रियदर्शनी, अमित, सोमेश. हाँ सर. Then similar way, we are using a destructor. So destructor is a special method which is used to release the memory of the object which is not required. The constructor is a special method which is used to release the memory of object. Destructor is a special method which is used to what destroy the object of the class which is not required. Now check. हमने ताला क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाउचे ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज allocate the memory for the variable and all the members of a class. So once all work is over, then destructor is called. तो तुम्हें लिखी नहीं हो what is constructor. First, constructor is a special method which is used. Constructor is a special method which is used for initializing the member variable. It is defined by double underscore init double underscore double underscore init then double underscore. Then write destructor. Destructor is a special method which is used to delete the memory of object
to delete the memory of the object which is not required anymore. Okay, so then right, for defining a destructor, double underscore del double underscore method is used. Just a minute. Start on to- When I show the example, hmm? Okay. Excuse me. Because destructor can be defined about class vehicle. It constructor defined as double underscore init. Then print vehicle is created. Then when I use del delete object, then destructor is called. देखो फर्स्ट जेतरा हम क्लास रा ऑब्जेक्ट बनैले कंस्ट्रक्टर कॉल हला देखे वो व्हीकल इज क्रिएटेड जेतरा हम लिखिबी del कार जेतरा यूज करिवि सेतरा हमरा डिस्ट्रक्टर यूज होबो बुझियला प्रियदर्शिनी सोमेश समित बुझ पाइल Sir, कंस्ट्रक्टर जेतेबेले कॉल हबो हमें सेतेबेले एठी ऑब्जेक्ट बनैले कार कार इज ए ऑब्जेक्ट व्हीकल इज ए क्लास तो मते एठी एटा जेतेबेले मु बनौची ऑटोमेटिक ए कंस्ट्रक्टरटा कॉल हला जेतेबेले मु del कार यूज करूची दैट मींस डिस्ट्रक्टर कॉल हबो by using of del keyword destructor is called
बुझेला हाँ सर। then next is you're asking Python class and function. Suppose class my class, function name is def, then show function self, then print this is class, this is class function, then I create a object c equals to my class, then c dot show function. बुझेला सोमेश एटी क्लास डिफाइन हैला क्लास माय क्लास एटा हैला गोटे फंक्शन एटी मु फर्स्ट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु शो फंक्शन टा को कॉल कली तरा शो फंक्शन टा को कॉल करूची से देखौची दिस इज क्लास फंक्शन सोमेश बुझ पाइलो हाँ Yes, सर। sir. प्रियदर्शिनी बुझी होची Hello. हां प्रियदर्शिनी को This is C equal to my class कौन पे लिखले? सीटा होची ऑब्जेक्ट क्लास रो ऑब्जेक्ट आमे जेता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन रे जेते बेले मेंबर्स माने को कॉल करिवा ताले हमको क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेको पड़ियो तो ये मुझे कौन कली ना क्लास रो ऑब्जेक्ट बनैली सी माय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाला तापर से ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमको शो फंक्शन ने मु कॉल कली तो एठी सेमती कौन होला ना एठी जेते बेले कार व्हीकल मु यूज करूची तो एतरा ऑब्जेक्ट बना होची तेनु एटा होची कंस्ट्रक्टर एटा कंस्ट्रक्टर कॉल होला सेमती डीएल ऑब्जेक्ट माने डिलीट ऑब्जेक्ट जेतरा करूची तारे मो डिस्ट्रक्टर एठी कॉल होची बुझिला Yes sir. Sir, को sir जो इधर हम constructor call कले c is equal to my class तापर c dot show कले since sir यार previous टारे sir हम करतले था ना car equal to vehicle और car dot init करतले कि चाहिए कि आर्थन sir नहीं तुम बुझी पाइलनी कंस्ट्रक्टर टा केते बेले कॉल हबो ना कंस्ट्रक्टर टा जेते बेले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा सेते बेले कंस्ट्रक्टर टा कॉल हबो तेणु आमे आउ थरे आईएनआईटी मेथड टा को कॉल करिवा काहे की दरकार जदी हमें ऑब्जेक्ट बनेबा रे कॉल हे जाउची तो हमें आउ थरे काहे से लाइन टा लिखिबो बुझी होची बुझी पाइलो sir मो कहते हैं I mean c dot show कले show method टा माने show method टा डाकिले एटा कोली c I mean car dot init टा को लिखिथिले हेतन कि
सो जगह रे जेंति ମୁଁ लिखुले ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନଉଛି ସେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଟା କଲ୍ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କୁ କାଇଁ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇନ କାଇଁ ଲେଖିବି ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ ତ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଟା କଲ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି ଲେଖା ହଉଛି ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଟା କଲ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିବି ଯେ କାର ଡଟ୍ INIT ओ सर ए लाइन टारे माने करला माने से तळ जो भेहिकल गेट हे लाइन କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର टा ଟା ଆସିବ କଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ ହବ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ The constructor is called when you are creating a class object. ଯେତେବେଳେ ଆମେ class ର object ବନଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର constructor ଟା call ହଉଛି ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଶା ତା ତଳଟାରେ ମାନେ ତଳ destructor ତଳ ଟା call ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ହେଲା del car object ମୁଁ car object ଟାକୁ delete କଲି delete ଯେତେବେଳେ କଲି କଣ ହଉଛି destructor ଟା call ହେଲା ଏଇଟା call ହେଲା ବୁଝିପାଇଲ सर ता नेक्स्ट एग्जाम टा नेक्स्ट एग्जांपल टारे ହଁ यस ସେଇଠି ଯୋଉ ୟୁଜ ହେଲା ଯୋଉ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଲି c is equal to my class କରିଥିଲେ ଆମର ସେ ଯୋଉ print this is a class function ହେଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଫେରି ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତା କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଟା constructor ନୁହଁ ଏଇଟା ବା function ଏଇଟା ହଉଛି function ଏଇଟା ହଉଛି constructor constructor ମୁଁ Okay, sir. କହିଲିନି it is a special method which is used for initializing member variable and it is called when Member you are variable, yes. creating a class object ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା sir very clear ତାପରେ ଦେଖ pass by reference and pass by value all parameter in Python programming language are passed by reference it means that you can change what a parameter refers to within a function the change also reflected back in the calling function okay तो ଆମର ଏଠି parameter define କରିବା the function name the changes passed to a changes passed to the list into a function ଏଠି ଆମେ function define କଲେ function ର ନାଁ ଦେଲେ function dot append 1 2 3 4 ତାପରେ ଆମେ values यूज କଲେ my list 10 20 30 अच्छा देखो एठी कोन रहउची गोटे मु फंक्शन डिफाइन कली फंक्शन नेम डिफाइन कराला एठी ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड मेथड यूज कराले कोन हबो ना मु जो भी वैल्यू पास करूची 1 2 3 4 जहाँ भी पास करूची
ए लिस्ट रे से अपेंड हे जिवो देखो एटा हला फंक्शन एटा हला लिस्ट डॉट अपेंड तो एठी देखो कोन रहउची हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन कले माई लिस्ट 10 20 30 एटा गोटे लिस्ट डिफाइन करा हला एठी देखो फंक्शन को कॉल करा हला फंक्शन को जेताले कॉल करा हला ए जो माई लिस्टटा आज ए पैरामीटर हिसाब रे पास करा हला एटा गला ए जो 10 20 30 एठी की गला तो एउठू पुनी आसिला को जगह रे एठी अपेंड हला माई लिस्ट डॉट अपेंड तरे 10 20 30 1 2 3 4 एटा अपेंड हला माने जॉइंट हबो तो एठी देखो एठी जॉइंट हला परे जोटा रिटर्न करिवो जो लिस्टटा रिटर्न करिवो इनसाइड द फंक्शन जहा रहिबो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन से रहिबो तो एटा होची हमर कॉल बाय वैल्यू डिफाइन करा हला डिफाइन करूची एठी वैल्यू इनसाइड द फंक्शन माई लिस्ट 10 20 30 तो 10 20 30 एठी गला तो एठी अपेंड हला 10 20 30 1 2 3 4 माने जॉइंट हला तापरे एठी जहा माने फंक्शन भितरे हमर जहा भी चेंजेस होउची आमे जरा फंक्शन बाहर देखिबा ए माई लिस्ट को कॉल करिबा से हमको सेम वैल्यू शो करिवो तापर हो देखो पास बाय रेफरेंस रे हमर कोन आसीबो एटा पास बाय वैल्यू गला एटा बुझियला ए प्रोग्राम टा अमित yes sir हाँ सर तापर पास बाय रेफरेंस जस्ट ए मिनट
गोटे मिनिट okay, then we are come to the pass by value. Okay, so now here we're not using append method. एटे हमें append method यूज करने तो फंक्शन भीतर हमें जहाँ भी यूज करिवा 1 2 3 4 then 10 20 30 तो 1 2 3 4 रहला तापरे 10 20 30 टा रिफ्लेक्ट हैला माने आउटसाइड इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन माने हम एटी पास कले कोन फंक्शन माय लिस्ट 10 20 30 ए 10 20 30 एठी की गला किंतु एठी किछि रिफ्लेक्टेड हैला नै तो ऑटोमेटिक कोन हमें आ गोटे लिस्ट पास कर देले तो ये जो इनसाइड द फंक्शन जहाँ भी वैल्यू अछि एटी शो कला तापर 10 20 30 जहाँ अछि एटी शो कला बुझे ना the function that we are using. Okay, so in tomorrow again we meet, we start with this global and local variable. Okay, बुझला ओके सर। हम्म। सर